नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सवे पावपणासनो सर्वे पावपणासनो मंगलाणं च संवेशीं मंगलाणं च सर्वेषां परममः वै मङ्गलम् परममः वै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च संवेशीं मंगलाणं च सर्वेषां परममः वै मङ्गलम् परममः वै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यम निश्चय वन्द्य है 33 कोटि देवगण 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय दो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो
નિશ્ચય में અભિવૃદ્ધિ દો નિશ્ચય में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद 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 तो ये भेजा ग्रुप में भेजा मैंने डाल दिया ग्रुप पे खोलो उस पे बताया हुआ है व्हाट्सएप पे पद भेजो आपको याद है जिनके पास नहीं उनको दे दो मोबाइल मोबाइल कॉपी भेजिए जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ ઉજળા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા આયુષ ટૂંકા છે અને ઘાસડા કરમના આયુષ ટૂંકા છે અને ઘાસડા કરમના ઉકલાતા નથી હજી કોયડા પઝલના ઉકલાતા નથી હજી કોયડા પઝલના ઝટકીને સાફ કરો એકમેવ પ્રાર્થના ઝટકીને સાફ કરો એકમેવ પ્રાર્થના દાદાજી માફ કરો બાળક છે ધૂળિયા દાદાજી માફ કરો બાળક છે ધૂરિયા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા આખું એ ગામ જમે કંકોડા ગાંઠના આખું એ ગામ જમે કંકોડા ગાંઠના ચિત્ત ફરે ચૌટામાં દુનિયાના બાગમાં ચિત્ત ફરે ચૌટામાં દુનિયાના બાગમાં હવે સહન થતું નથી બળતી બરહાડમાં હવે સહન થતું નથી ભરતી બરહાડમાં ખોદી નાખો જડ મૂળથી ગાંઠ્યું ના મૂળિયા ખોદી નાખો જળમૂળથી ગાંઠ્યું ના મૂળિયા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા બાગોળે બેસ અને છાગોળે છસ બાગોળે બેસ અને છાગોળે છસ નારા ચોખ્વાબમાં વ્યવહારે જાગ નારા ચોખ્વાબમાં વ્યવહારે જાગ
સ્વચ્છ રાખો અંતકરણ મન વાણી વર્તના સ્વચ્છ રાખો અંતસ્કરણ મન વાણી વર્તના કોઈને એ ગમતા નથી ગંદાતા લુગડા કોઈને ગમતા નથી ગંદાતા લુગડા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા આપણું જે હતું નહીં છે નહીં ને થશે નહીં આપણું જે હતું નહીં છે નહીં ને થશે નહીં આપણે ગયા ચોંટવા મોહાંદા સખ્તમાં આપણે ગયા ચોંટવા મોહાંદા સખ્તમાં ધમધમાવો પુરુષાર્થ એક એક શ્વાસમાં ધમધમાવો પુરુષાર્થ એક એક શ્વાસમાં ગાંઠ ને ના ગાંઠ છૂટે કાયાના લફરા ગાંઠ ને ના ગાંઠ છૂટે કાયાના લફરા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા દોડત 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 ભટક 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 દોડત 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 ભટક 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 થકત થકત બોલે જીવ હવે ખપે મુક્ત થકત થકત બોલે જીવ હવે ખપે મુક્ત ચકર ચકર ચાર ગતિ ઘુમિયા ચકરડા ચકર ચકર ચાર ગતિ ઘૂમિયા ચકરડા મિટાવી દ્યો દાદા બહુના ફેર પુડરડા મિટાવી દ્યો દાદા ભવના ફેર પુદરડા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાઈએ છે ઉજળા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા જય સચિદાન જય સચ્ચિદાનંદ समझ में आया ऐसे ना नहीं है तो गायक है तो निर्मा की एडवर्टाइज आती ना क्या था टाइटल उसका मुझसे सफेदी निर्मा से आए तो हम लोग निर्मा का भी प्रयोग नहीं किया होगा, इससे कपड़ा गंद मैले दिखते हैं ना। मैं तो सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइज देखी नहीं होगी नहीं, आपने देखी थी कि नहीं वो 10 में 10 मार्क वाली, तो फिर केस क्यों नहीं किया कंपनी पे? हमारे टीवी में केस का पैसा मिलता था आपको, लोगों को मूर्ख नहीं बनाया, मूर्ख नहीं बनाया, तो कपड़े साबुन के पानी में भिगोया, निकाल के सुखा दिया, दाग चले जाते हैं। कभी हुआ है? ये बहन लोग भी बात सही नहीं मानेंगे, फिर भी किसी ने दावा किया नहीं कंपनी पे। देखो पूरा गलत है ऐसा जानते फिर भी दावा नहीं किया। तो यहाँ तो क्या था कि यार हम अच्छे दिखाई देते, साफ सुथरे दिखते हैं, तो किस वजह से? कि दादा के ज्ञान से। ये हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है उसमें, तो ज्ञान के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। ये साथ में क्या बोलते हैं कि अभी तो कपड़ा पूरा साफ हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत की है। क्यों? ज्ञान तो मिल गया, शुद्धात्मा हो गए,
तो कैसा किया, वो 25 माल की बिल्डिंग बनानी है, टॉप फ्लोर बना के दाना दे दिया कि आपका टॉप फ्लोर मैंने बना दिया, आपको अपनी शुद्धात्मा की गद्दी पे बिठा दिया। अब ये मन वचन का है कि प्योरिटी पूरी करेंगे तो बाकी नीचे वाला 24 माल रेडी हो जाएंगे। आइए बात ख्याल में आ रही है? नीचे के 24 माल कब बनेंगे? मन वचन का कि प्योरिटी जैसी जितनी जितनी करते जाएंगे, जितनी गलतियां इसकी दिखाई देगी उसके प्रतिरोध करेंगे, उतनी मन वचन का की प्योरिटी होती जाएगी। तब ये मन वचन का कपड़ा है वो साफ सुथरा होगा। आज तक क्या किया तक हम तो दूसरों के कपड़े धो देते थे, क्योंकि हम तो परोपकारी स्वभाव वाले थे ना। नहीं, परोपकारी स्वभाव नहीं था तो फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों के कपड़े मुफ्त में धो देते थे। पानी हमारा, बिजली हमारी, साबुन हमारा, सब हमारा, मेहनत भी हमारी। बात अच्छी है ना? कपड़ा सामने वाला, हाँ, कपड़ा सामने वाले का, जूता भी सामने वाले का, तो फ्री ऑफ लॉन्ड्री कर देते थे, क्योंकि हम तो परोपकारी स्वभाव वाले थे ना। मेरा जो होना है वो होने दो, बाकी सामने वाले को मुझे साफ सुथरा कर ही देना है। कितना अच्छा था। देखिए यहां बात ख्याल में आती है कि भाई सामने वाले साफ हो गए तो हमें क्या फायदा होगा? सामने वाले साफ सुथरे हो गए, स्वच्छ हो गए तो उससे हमें क्या फायदा होगा? स्वच्छता तो ये मन वचन क्या की चाहिए ना। तेरे फ्रेंड का मार्क अच्छा है, उसमें आपको फायदा होगा? मार्क किसका अच्छा आना चाहिए? मेरा। तो आपके मार्क अच्छे आएंगे तो आपको दुख होगा ना? नहीं। क्यों? कि सब अभी पीछे पड़ जाएंगे कि अभी और भी अच्छे मार्क लाओ, और भी ज्यादा लाओ, ऐसा नहीं होगा। पढ़ जाएंगे तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और भी, तो मेहनत बढ़ जाएगी ना। इस समय अच्छे मार्क नहीं लाते ना। अच्छे भी नहीं करते, भी नहीं रहा था। वो ऐसा है लगता अच्छा चल, आप पढ़ाई आपके लिए नहीं करते, इसलिए पढ़ाई किसके लिए करते हैं? नहीं, आपके लिए करेंगे तो फिर बढ़िया पढ़ाई करेंगे। तो दादा दादी के लिए करते हैं, पापा मम्मी के लिए करते हैं, तो फिर अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो चलेगा। हाँ, आपके मार्क अच्छे आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, पर फिर मेरे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हाँ, जो मेरे को पता नहीं होता। अच्छा लगा, वो प्रश्न पूछने वाले का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, अभी मुझे ख्याल में तो यहाँ बात समझने की क्या है कि स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो हम गौर से पढ़ेंगे, घर पे आके भी रिवीजन कर लेंगे, तो फिर कितना भी ट्विस्ट करके पूछेंगे ना तो भी आंसर देने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात ख्याल में आ रही है? आपने समझ के पढ़ा है, क्रैमिंग करके नहीं पढ़ा है। क्रैमिंग ख्याल में आता है? क्या बोलते हैं? तो मुंह पाठ किया है, समझ के मुंह पाठ किया तो याद रहेगा। पैसे ही पढ़ के याद कर लिया है बिना समझे, तो वो प्रश्न ट्विस्ट करके पूछेगा, उल्टा पुल्टा करके पूछेगा, तो आप भी इधर अंदर सब सॉल्व करने लग जाएंगे। ये जवाब किधर है इसका? हमें तो ऐसा सीखा ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं है। होगा ना ऐसा? तो यहाँ क्या है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, वो सारी चीज कैसे सीखने की, पूरे अटेंशन के साथ। बाकी जो भी काम करना बाद वो पढ़ाई करने के बाद क्या नहीं कर सकते। कल नहीं बताया मैंने आपको कि खाना खाते समय क्या करने का? टीवी नहीं देखनी। क्यों नहीं देखने का?
हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आएगा तो सामने वालों का आएगा, हमें थोड़ा आएगा। तो हॉस्पिटल का बिल देख के सामने वालों का अटैक आएगा कि दोनों को आ जाएगा। पापा को पूछो कि हार्ट अटैक आया तो आपको अच्छा लगेगा? वो तो मेरे को उनका जवाब पता है। तो मुझे पता नहीं है ना, आप दे दो आंसर, क्या बोलते हैं? वो बोलते नहीं ये क्या बात है, नहीं मतलब ऐसे क्या, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो बात तो मतलब बात समझो कि आपकी सेहत खराब हो जाए तो किसी को भी अच्छा लगेगा? नहीं तो हमारी सेहत का ख्याल किसको रखने का? हमको रखने का। फिर डायबिटीज आ जाए, ब्लड प्रेशर आ जाए, डॉक्टर बोले कि ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, तो अच्छा लगेगा? ये सब खाओ पियो, वो सब एंजॉय करो, और फिर भी कोई बीमारी नहीं आती है तो अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मेरे को लगता है कि ये मतलब अगर हम सब कुछ खा पीते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो सब खाते में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ऐसी बात कर रहा हूँ। लक्षण बोल रहा हूँ मैं। तो फिर सही रहना तो अभी प्रॉब्लम आएगा नहीं ना? नहीं। हाँ, अभी टीवी देख के क्यों नहीं खाने का है? पर टीवी देखते देखकर आप खाना खाते हैं तो आपको ख्याल उसका पता चलेगा कि खाने का टेस्ट कैसा है? नहीं कितना खाया वो पता चलेगा? वो मुंह में जा रहा है कि नीचे गिर रहा है वो भी पता चलेगा? वो तो पता चलेगा। हाँ, वो पता चलेगा तो फिर तो नीचे गिरेगा नहीं ना कुछ भी। वो नहीं डिश के बाहर नहीं गिरेगा, मतलब मुंह के बाहर भी नहीं गिरेगा, डिश के बाहर नहीं, मुंह के बाहर भी नहीं गिरेगा। एक काम करना, अभी आज रात को फोटो लेना शुरू करना। तो वीडियो बनाते हैं। हाँ, कि भाई डिश के बाहर गिरता है, मुंह के बाहर गिरता है कि मुंह के अंदर ही गिरता है, वो देख लेंगे। देखो एक बात समझ, खाना खाते खाते नीचे गिर गया तो हम फेंक देते हैं ना, खाना कि वो वापस खा लेते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नुकसान हुआ ना, किसी को खाने को नहीं मिला ना। पर पापा क्या करते हैं, बाहर एक बाउल में डाल देते हैं मैक्स का, तो फिर बाकी सारे आ जाते हैं। हाँ, वो तो क्या है कि अभी फेंक ही रहे हैं, तो किसी को बर्ड्स को काम में ऐसा करके बाहर फेंकते हैं। लेकिन सही मायने में देखो तो हमें कैसा होना चाहिए कि हम जो भी खाते जितना पीते खा- कुछ भी करते खा हैं, सकते हैं उतना खाना चाहिए, खाना जितना जरूरी है इतना खाने का, और जितना सब जरूरी बिगड़ना नहीं चाहिए। पर जितना जरूरी है उतना भी लेने का। हाँ, तो ये लोग ज्यादा दे देते नहीं। पर मम्मी ऐसी है ना, 3 रोटी खाओ अभी खत्म चाहिए मेरे को। मम्मी नहीं बैठी इससे बोल रहा नहीं। एक्शन के साथ चलिए। 3 रोटी आगे आगे नहीं देखिए, पर फिर भी खाना पड़ता है। अच्छा तो देखो ऐसा ही होता है तो मम्मी को पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, वो पता होता है कि नहीं? आपकी खाने की कैपेसिटी कितनी है वो पता किसको होता है? पापा को पता होता है कि मम्मी को पता होता है? मेरे को अच्छा, आपको और किसी को नहीं पता। और किसी को? तो आपको तो भूख लगती ही नहीं है? सही है, लगती नहीं है ना? लगती है पर जो आपको मन करता है वही खाने के लिए, सब खाना खाने के लिए नहीं। हाँ, मतलब अभी मुझे ये बता कि घर में आप 6 लोग हैं अभी, बराबर है? ये बाकी के भी सब, हर एक का अलग अलग खाना पकाएंगे तो खाना पकाने वाले की हालत क्या होगी? थक जाएगा कि फ्रेश रहेगा? मजा आएगी?
थक जाएगा। तो रोज सभी की पसंद का तो नहीं बन सकता ना, किसी एक की पसंद का बन सकता है, आपकी पसंद का बने ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो क्या करने का, तो फिर भी खाने का, फिर भी खा लेने का। बस थोड़ा सा कम। अरे थोड़ा थोड़ा सा कम में से एक चम्मच कम खाने का, ऐसा ना। अभी दूसरी तरह से बात समझो, ठीक है। हम जो खाते हैं वो ध्यान से खाएंगे आप, चबा चबा के खाएंगे आप, तो कम खाएंगे तो भी चलेगा। तो कैसे खाने का मालूम है, एक कुल्हड़ लिया ना, उसको 32 बार चबाना पड़ता है। क्या बोलते हैं, कौवा कौवा बोलते, क्या बोलते हैं, एक गिलास मेरे एक बार बाइट किया ना, 1 बाइट उसको 32 बार चबाना पड़ता है। तो तो क्या कि आपके आपके सलाइवा है वो खाने में मिक्स होगी ना, तो डाइजेशन अच्छी तरह से होता है। मैं तो 10 बार ही चबाता हूँ। हाँ, तो फिर डाइजेशन, इसलिए आपकी बॉडी पतली है। पानी भी चबाने को दादा भगवान ने बोला। हाँ, ये नहीं, ये दूसरी बात बता रहे, कि पानी पीते हो ना, उसको भी चबा चबा के पीने का। मैं मस्ती नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूँ। पानी है वो भी क्या जीव है, तो चबा चबा के पीते हैं, डाइजेशन अच्छी तरह से होता है। तो सीधा उतार दिया तो डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता, बाइट करके तो नई आदत डालनी पड़ेगी। तो पूरा नहीं करने का। आपको मम्मी को बोलने की छूट है कि मुझे इतनी भूख नहीं लगी है, तो थोड़ा कम दो, आधी चपाटी कम दो, ऐसा बोले। तो 3 की जगह 2.5 दो, ऐसा बोलेगा। वो तो आप 3 की जगह 2 खाएंगे तो उनको लगेगा इसके ऊपर क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा पूछो। ऐसा लगेगा कि नहीं आपको? आपको अभी याद है? तो आप 3 चपाटी खाने के लिए बोलते हो उसको, वो बोलेगा 3 की जगह मुझे 2.5 दो तो चलेगा, और 2 बोलेगा चलेगा, नहीं चलेगा। आपको बोले आधी चपाटी कम दो, आज थोड़ी भूख कम है, ऐसा बोलने का। पर चबा चबा के खाएंगे ना, वो 2.5 की जगह 3 जैसा हो जाएगा उसका फल, और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा, और खून भी अच्छा बनेगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, स्टेमिना अच्छा रहेगा, तो फायदा है। तो खेलने में स्टेमिना चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन से गेम खेलता है? कौन सा गेम? टेनिस खेलने जाता था, कभी बंद कर दिया? फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल, तो फुटबॉल में कितना स्टेमिना चाहिए, कितना? कितना स्टेमिना चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए? बहुत। एक बार मैच के बीच में थक गए ना, तो फिर सब्स्टिट्यूट को लाना पड़ता है। ना, सब्स्टिट्यूट को लाना पड़ता है, तो फायदा नहीं है दूसरों को, आपको तो खेलने का मिलेगा ही नहीं। देखो, सब्स्टिट्यूट को लाना नहीं पड़े, इसलिए वो 3 रोटी खिला रहे हैं आपको, आपके फायदे के लिए। मैं तो वैसे मैच हमारा अप्रोक्सीमेटली होता है 30-35 मिनट्स। अब दो बार होते हैं, 30 मिनट की 2 बार होती है ना। नहीं, ये पूरा मैच चलता है। अब मैच 50 मिनट के कितने टाइम के होते हैं फुटबॉल के? वैसे तो 50 मिनट के होते हैं। हाँ, मतलब ब्रेक के साथ 1 घंटा हो जाएगा। 1.5 घंटा। हाँ, तो 1.5 घंटे की एनर्जी तो चाहिए ना। और आपका स्टेमिना, तो आपको मजा आएगी नहीं, फिर थक गए और फिर खेलने का आएगा तो क्या होगा, वो सामने वाले गोल कर जाएंगे, आपकी टीम हार जाएगी, तो और भी मजा आएगी ना। मैं पहले बोल दूंगा सर को कि सर पहले ही सब्स्टिट्यूट भेज दो, मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करने दो,
उसके बाद वो सब्सिट्यूट को वापस लाएंगे और मैं चले जाऊंगा। वो सर भी पक्के होते हैं, वो बोले जो अच्छा खेला उसको भी भेजो, नहीं इसको सब्सिट्यूट में रखते हैं। तो सर को जो अच्छे खेलने वाले होते हैं ना, उनको भी पहले मौका देते हैं। फिर ये बार बार थक जाता है तो छोड़ो, इसको भी ज्यादा भाव देने का नहीं है, ऐसा होता है। फिलहाल हमें तो क्या रखने का, अच्छा खेलने का भी और स्टेमिना भी अच्छी रहनी चाहिए। तो एनर्जी ड्रिंक पीने से एनर्जी नहीं आएगी, खाना खाने से एनर्जी आती है, वो उससे नहीं आती। वो तो खाली टेम्पररी आप सॉल्यूशन लाए। मैं तो बस पानी पीने से एनर्जी लेती हाँ, तो वो भी बार बार पानी पियो तो भी थकान ज्यादा लगती है। देखो अभी इतना नक्की रखना, बराबर। आज स्थिति कैसी है, आयु कर्म छोटा लेकर आए। तो पहले के जमाने में 100 साल का आयु गिना जाता है, तो 100 साल तक कोई जाते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं है ना। तो आयुष से छोटा है, तो कर्म की गठरी कॉम्प्रेस कर करके लाए, भर के लाए। खाली सीधी झोली में भर के नहीं लाए, दबा दबा के प्रेस करके माल भरा है। तो दबा दबा के भरा तो क्वांटिटी छोटी हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है। तो जैसे वो गठरी छोड़ो, खोल दो, वापस वो अपनी फुल साइज में आ जाएगी। तो वैसे यहाँ भी हमने वो रुई की गठरी बनाते हैं ना, रुई की एक बेल होती है, एक उसका पैक होता है, दिखता कितना छोटा है, कंप्रेस करके भरा तो कितना छोटा लगता है। उसका वेट कितना होता है, रुई की एक बेल का वेट कितना होता है? जो छोटा वाला है, रुई के कॉटन की जो बेल बनाते हैं, उसका वेट कितना होता है? देखो गूगल में देखो। 1 किलो। हाँ, 1 किलो, आधा किलो। नहीं। अरे बड़ी गांठ होती है। बड़ी गांठ। ये पूरा बड़ा था। जय सत्संग चालू है। जय सच्चिदानंद। 30 किलो निकल। हाँ इस रहा है। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक मिनट। अच्छा, मैं बोल देता हूँ आपको। जय सच्चिदानंद। एक मिनट चल के दो में नहीं। एक बड़ा गंदा होता है ना, जिसमें से बेचते हैं। 170 किलोग्राम बोलते हैं। 170 किलोग्राम। तो साइज कितनी होती है देखो। 170 किलो। बहुत बड़ी गांठ होती है तो साइज बहुत छोटी होती है। 170 किलो में साइज छोटी कैसे होती देखो तो सही कितनी साइज आती है पहले। ये निकाल देते हैं उसके, खाली दबा दबा के लाए। वो दबा के वो तार से बांधते हैं, चारों ओर से तार से बांधते हैं। तो साइज है? साइज कितनी दिखती है? साइज क्या बताइए? 8 फुट तो लंबा होता है। नहीं, नहीं 8 फुट नहीं है, 4 फुट बाय 1.5 फुट। 4 फुट बाय 1.5 फुट। और वेट कितना? 120 किलो ऑलमोस्ट। 170 किलो। है ना? 117 के 170 170 बोलो। तो बात समझो कि 4 बाय 1.5 फुट का ही गठरी है, तो वेट कितना है, कितना कॉम्पैक्ट करके भरा है। इसी तरह से हम भी ये जीवन में कर्म कैसे लेकर आए थे कि इस तरह से दबा दबा के भर के लाए, कॉम्प्रेस करके। अभी जो भी भर के लाए, अभी क्या करने का, ये जो भी सामने आता है संभव से निपटारा कर देने का। दूसरा कुछ सोचने में पड़ने की जरूरत, अच्छा है बराबर नहीं है कि क्या, वो देखने का नहीं है हमें।
हमें इसका हल लाने से मतलब है, लेकिन वो हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो दादा भगवान क्या बोलते हैं कि भाई फ्लाइट में घूमते हैं फिर भी वो कर्म की गठरी है वो खाली नहीं होती है। तो पहले बैलगाड़ी का ठिकाना नहीं था, सबके पास थोड़ी बैलगाड़ी थी, फिर भी उनको जीवन में संतुष्टि रहती थी। हम गाड़ियों में फ्लाइट में घूमते फिर भी हमें संतुष्टि कितनी है, बात तो समझनी चाहिए ना। देखिए इतना सारा करने के बावजूद भी समस्या का समाधान होता है, शांति रहती है, सुख रहता है? नहीं रहता है। तो कमाई क्या की हमने? तो अभी क्या कि दादा ये जो भी माल है आप हमें साफ सुथरा कर दो, आप मारो पीटो जो भी करना है सब आपको छूट है, लेकिन हमें साफ सुथरा बना दो। बोल सकते हैं? चंद्रकांत भाई दादा भगवान को मिले पहली बार, चंद्रकांत भाई, तो उन्होंने पूछा दादा को कि वो जानते थे कि वो श्रीमत की भक्ति करते हैं, ऐसा उनको ख्याल में था। तो उन्होंने पूछा कि दादा मैं ज्ञानी की खोज में हूं, आपको ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो मुझे बताना। फिर 58 में ज्ञान हुआ, 62 तक किसी को मालूम ही नहीं था कि इनको ज्ञान हो गया है। जब चंद्रकांत भाई ने पूछा, निमित्त मिला, तभी उन्होंने आंसर दिया, वे तेरा दादा ही ज्ञानी है। तो वहां तक तो बोला ही नहीं उन्होंने कि मैं ज्ञानी हूं, भीतर भगवान प्रकट हो गए, मेरा लाभ उठा लो। हमें कोई लॉटरी लग गई है तो सबको पता चल जाएगा कि देर लगेगी? हाँ पता चलेगा अगर हम ऐसे फैला ना दे, मतलब कि वो बताए नहीं तो हमारे पास ही रहेगा। आप बताए बिना रह सकते? आसान है? आसान तो नहीं है। हाँ सबसे पहले बताओगे? तो सबसे पहले किसको बताएंगे? पापा मम्मी को कि दादा दादी को? मैं अगर दूंगा तो मैं पापा मम्मी और फिर मतलब फैमिली को, रिश्तेदार को बताऊंगा। पता और चलने मैं में बोलूंगा और किसी को मत बताना। और सब ऐसा ही बोलते हैं। मम्मी को पूछ कि कोई भी सहेली बोलती है क्या बोलेंगे? बताएगा है क्योंकि पता लग जाएगा। तो खाली आपको ही बताना और किसी को मत बोलना, सब ऐसा ही बोल के सब दूसरों को बोलते रहते हैं, तो मालूम है? तो क्या बात तो समझनी चाहिए ना। देखिए यहाँ दादाजी क्या बोलते हैं, ये काल में इतनी शक्ति लाएंगे कहां से, तो धीरज कहां से लाएंगे? है इतनी धीरज बिना बोले रह सके? अच्छे मार्क आ जाते हैं ना तो भी आके तुरंत बोल देंगे सबको। हाँ तो पहले से 5 मार्क भी ज्यादा है तो भी बोल देंगे। पिछले रिजल्ट के कंपैरिजन में 5 मार्क भी ज्यादा आ गए तो भी बोलेंगे देखो बेटा कि मैंने कितना अच्छा प्रोग्रेस किया, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ तो ब्रह्मांड की टॉप मोस्ट लॉटरी लग गई, फिर भी किसी को पता नहीं चला। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आप हमें कैसे भी करके साफ सुथरा कर, आपको जो करना है, उसे पद में लिखा है ना, गारो दैने दादा गांगड़ू ने तारो दादा भ्रांति रसोगारो कोमर शब्दों थी नथी समझा तू त्यारे दादा कठण शब्दों ये भले वापरो।
गाली दे के भी आप हमारा काम निकालो, मार पीट के जो करना है करो, ठीक है। हमारी समझ में बात नहीं आती है, इससे हम आपको बोलेंगे आपको जो करना है करो, लेकिन बात हमारी समझ में आए ऐसा करो। हम इतने सरल तो है नहीं कि सीधी बात समझ ले। और सरल होते तो कब के समझ के नहीं बैठे होते। टेढ़ापन था ना कि सांप होता है ना, हाँ अपने बरों में जाता है, हाँ तब कैसे जाता है? ढूंढ 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 के भटक भटक के जाता है। नहीं नहीं, वो तो उसको अपना घर तो मालूम होता है। आप आपके घर पे कैसा ढूंढ के आता है? हॉल में जाता है वैसे उसको भी अपना होल तो पता होता है, ये मेरा ही होल है, लेकिन बाहर कैसे घूमता है? सीधा जाता है नहीं, तो, टेढ़ा मेढ़ा जाता है और अपने घर में जाता है तभी तो सीधा जाता है। देखा है आपने? देखा तो नहीं है पर पता है। पता है, अच्छा। तो एक जगह तो सीधा रहता है ना। हम कैसे हैं? हम भी वैसे हैं। हाँ हम भी वैसे हाँ, हम वैसे, लेकिन कैसे मालूम है? वहां बहुत सीधे सरल दिखते हैं, और घर में आते हैं तभी सरल नहीं। हाँ सरल दिखना पड़ता है। नहीं नहीं, टेढ़े हो जाते हैं कि सीधे रहते हैं? सीधे रहते हैं। सीधे रहते नहीं है, रहना पड़ता है। हाँ नहीं तो जानते हैं कि मार खानी पड़ेगी, प्रसादी मिलेगी, डांट सुननी पड़ेगी, ऐसा रहता है ना। ठीक भाई, बात समझो कि यहाँ आप सीधे हो गए तो किसी को बोलने की नौबत आएगी, बोलने का मौका मिलेगा? हाँ नहीं बोलेंगे। सीधे हो गए तो बोलने की जरूरत ही नहीं है किसी को। आप समझ लेते हैं बात को, तो कोई बार बार बोलने के लिए आएगा? नहीं नहीं आएगा। तो फायदा आपको ही है ना। आप टाइम होता है, टाइम पे खाना खा लेते हैं, तो किसी को बोलना पड़ेगा कि चलो खाना खा लो, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। कितनी बार बोलना पड़ता है? कभी कितनी बार बोलना पड़ता है? मम्मी को बोलना पड़ता है 20 बार। अभी चल, अभी मुझे ये बता, आपका फ्रेंड बुलाने के लिए आता है तो 20 बार बुलाना पड़ता है आपको? नहीं, हाँ, वो एक बार बुलाता है। अगर मैं नहीं आता बाहर तो वो चले जाता है। अच्छा, वो कितना सीधा सवाल है। तो मम्मी पापा टेढ़े टेढ़े, ठीक, हम टेढ़े कि हम उनकी बात सुन नहीं रहे? क्यों नहीं सुनते? अच्छा, भूख नहीं लगी इसलिए। तो क्या बात समझ लीजिए कि भाई टाइम पे भूख लगे, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको टाइम होता है, भूख लगती है कि नहीं लगती है? तो बीमार आदमी है तो उसको भूख नहीं लगती है, काम नहीं करता उसको भूख नहीं लगती है। आपकी स्थिति होती वैसी तो है ही नहीं, बीमार है। हाँ, सेहत अच्छी है ना, खेलने भी जाते हैं ना, तो भूख तो लगनी ही चाहिए ना। खेलने मेरा क्या रहता है, स्कूल में 4 बजे तक रहता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। फिर थोड़ी सी भूख लगती है तो फिर मैं ब्रेकफास्ट खा लेता हूँ और फिर मेरे को खेलने जाना होता है। मैं जब जाके आता हूँ तब भूख लगती है। अब तो जब वापिस आता है खाना खा लेने का ना, टाइम चेंज कर लेने का। तो छोटू बोलता है कि नहीं वो 8 बजे ही मिलेगा, ऐसा बोलता है? हाँ, पर जब ऐसा नहीं बोलता है। आप बोलोगे मुझे 7:30 बजे, तो 7:30 बजे बना के रखेगा।
पर तो फिर आप खेल के आओ, फिर वापस दोबारा नाश्ता करेंगे तो भी भूख नहीं लगेगी। छोटू भैया तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि डिपेंड होता है कि कौन सा खाना है। अगर वो प्रॉपर लंच वाला है तो लंच के टाइम में मिलने वाला है। अगर वो एप्पल या स्नैक वाला है तो फिर वो कभी भी लेके जाओ, नहीं तो जब ब्रेकफास्ट है उसका फिक्स टाइम है। हाँ तो बराबर है, वैसे खाने का टाइम भी फिक्स चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ देखो, आपको लाइफ में सक्सेसफुल जाना है ना, हाँ तो क्या होना चाहिए? आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, हाँ खाने का चाय नाश्ते का वो सब टाइम फिक्स होना चाहिए। वो सब टाइम नियम से आप चल रहे हैं, आपकी लाइफ भी नियम से चलती रहेगी, सही ढंग से। फिर आप उसको बार बार ब्रेक करते रहेंगे तो उसके असर आपकी सेहत पे आएगी, हेल्थ पर आएगी, चलेगा ना? अभी ये सीख लेना, ये सब टाइम से कर लेना का। 5-10-15 मिनट कभी कुछ संजोग के कारण बाहर गए या लेट हो गया तो बात अलग है, तो फिर टाइम हो गया बोलेंगे नहीं हुई तो मेरी सीरियल पूरी करना था, ऐसा नहीं करना है। चलेगा ना? चलेगा। आज से करेंगे, कल से करेंगे कि परसों से? आज से कर लूंगा, पर आज खाली तो अभी डिनर बचे। अभी तो खाली खाना ही बाकी है और कुछ बाकी नहीं है। ब्रेकफास्ट का टाइम तो पूरा हो गया। हाँ तो खाली एक ही काम बाकी है, एक काम पे आज हम साथ में खाएंगे, तो आपका देख के मेरी भी हिम्मत खुल जाए खाने की, बराबर? चलो अच्छा, प्याज एक थाली ज्यादा लगा ना, तो 2 ज्यादा लगानी पड़ेगी, रियान रिदान दोनों की लगानी पड़ेगी, हमें तो पक्षपात नहीं है। देखिए आप बताना क्या चाहते कि यार सारा फोकस हमारे खुद के मनोवचन क्या पे रहा तो हमें कमाई ज्यादा है। अभी क्या स्थिति, देखिए मनोवचन का क्लेम है हमारे पास कि आप शुद्धात्मा हो गए, इससे ऐसा मत मानना कि आपका मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। पहले हमें प्योर करो, हमें प्योर नहीं करेंगे वहां तक हम आपको ग्रीन सिग्नल देने वाले नहीं है मोक्ष में जाने के लिए। तो फोकस इसके ऊपर ही होना चाहिए। अब बच्चों पर रखने का ऐसा नहीं बोलता कि नहीं रखने का, आपको फोकस किस पे रखने का है? आप इस पे, हाँ, और साथ में पापा मम्मी सबका ख्याल भी करने का, आंख बंद करके नहीं करने का। उनको कुछ काम है, प्रॉब्लम है तो सीधा जाके हेल्प करने का। बराबर है, आसान है ना? आसान नहीं। क्यों? हेल्प करना तो आसान ही है ना। हेल्प करना आसान है। हाँ, आपको डांटे थोड़े भी हमें क्यों हेल्प करने के लिए, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। भैया बोलता हूँ कोई क्यों हेल्प करने के लिए, ऐसा बोलता है? देख आ गया, याद किया और आ गया, देख। ओ नहीं यार, क्या होता है तो एक तो ये काल में धीरज की कमी है, पेशेंस है नहीं इतनी। कुछ भी काम करना
ऐसा चुटकी बजा के हो जाना चाहिए। तो सब काम ऐसे थोड़े होते हैं, होता है चुटकी बजा खाना पूरा हो गया ऐसा होता है? तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं हो चुटकी बजा और पूरी सीरियल देख ली, नहीं, ऐसा कुछ करो ना कि खाली चुटकी बजे और सीरियल पूरी हो जाए देखने की। चुटकी बजे और खाना पूरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो हर चीज होती है वो सब टाइम से होती है। अच्छा। डिपेंड करते हैं कि आप कितना जल्दी खाते हो, कितना धीरे खाते हो। देख ले, कितना जल्दी खाते कितना धीरे खाते हो तो मैंने आपको बताया ना कि कैसे खाने का, वो तो सिखाया आपको। पर चुटकी के टाइम में मैं बोलूँ तो कोई हो सकता है जो खा सकता, पर मोस्टली लोगों नहीं खा सकते उस टाइम, क्योंकि अगर आपने ऐसे चुटकी बजाया और खा लिया तो फिर आपकी जो डाइजेशन होगी ना वो अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने चबाया नहीं। और अगर आपने चबाया नहीं तो हो भी सकता है आपके गले में अटक जाए। तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। इससे यहाँ बोलने का कि थोड़ी पेशेंस रखो। जैसे हमने चुटकी बजा की पूरी सीरियल देख ली, और किसकी? पर आंखों का नुकसान तो नहीं होगा, पर हमको समझ में नहीं आएगा कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, बीच में क्या हुआ था। ऐसा लगेगा हमें कि बीच में पहले हुआ था, पहले वाला बाद में हुआ था और बाद में वाला बीच में हुआ था। करंट आया ही नहीं, रैंडम हो जाएगा। मतलब हर सीन आपके दिमाग में चलेगी कि नहीं मैं यहाँ पे था, नहीं मैं तो वहां पे था ना। तो फिर मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मतलब आप ध्यान से देख रहे हैं, समझने का प्रयत्न करें तब याद रहेगा ना। तो पढ़ाई में ऐसा करते? पढ़ाई में ट्राई करता हूँ ऐसा करने का, पर या तो ट्राई नहीं करते हैं, सीरियल देखते हैं तभी ट्राई करनी पड़ती है। तब ट्राई नहीं करनी पड़ती है, वो खुद क्यों? ऑन ऑफ, क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्योंकि वो खुद ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता है। नहीं, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है वो तो बराबर है, और फिर भी स्विच तो आपको ऑपरेट करनी पड़ती है ना। पर अगर तो आपने उसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट पड़ता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा पड़ता है? दोनों में ही कम लगता है। दोनों में कम लगता है, तो ज्यादा कहाँ है? खेलने में। हाँ। बराबर। अभी खेलने में इंटरेस्ट है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन केवल खेलने में इंटरेस्ट रखने से काम होने वाला है? नहीं, अच्छा नंबर मार्क स्कूल में मार्क अच्छे आ जाएंगे? नहीं। पर टीवी और पढ़ाई में मेरे को कम हो गया इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा भाई हर बार टीवी चलाता है। वो अपनी सीरियल ही देखता है? वो सीरियल नहीं देखता। तो क्या देखता है? वो कार्टून देखता है? जब भी मैं बोलता हूँ भाई मेरे को रिमोट दे दे आज नहीं। वो बड़ा है आपसे? नहीं मैं बड़ा हूँ फिर छोटा इससे दादागिरी करेगा ना। हाँ, हाँ, उसका राइट है ना। उसका राइट है पर मेरा भी राइट है। हाँ राइट है सर, आपकी ड्यूटी है, राइट नहीं है। मैं उसे रोकने का ट्राई करता हूँ। नहीं तू तो मत कर, वो है उसके वो ऐसे नहीं, आज नहीं कल, और जब कल हो जाती है नहीं और मतलब मैं बोलता हूँ उसे आपने ही तो कल पूछा था, वो बोलता नहीं तो मैंने, और फिर उसको याद ही नहीं रहता उसमें। कितना सरल है, भूल जाते हैं सब। वैसे तो मैं उससे ज्यादा भूलता हूँ। मार्क्स किसका अच्छा आता है? मार्क्स उसके ज्यादा अच्छा आता है। उसके ज्यादा अच्छा तो बोलता है, वो भूल जाता है वो। कई पीरियड मतलब कई चीजों में मेरे ज्यादा आते हैं, कई में उसके। तो ओवरऑल किसके ज्यादा आता है? वो जब अच्छा होता है उन पीरियडों में, फिर वो मेरे को समझाता है कि भाई आप यहाँ पे गलत हो रहे हो। अच्छा। और जब उसको समझ में नहीं आता मैं उसे समझाता हूँ कि यहाँ पे गलत हो रहा है
एक बार फॉर्मूला देख ले, पहले ट्राई कर, फिर अगर तूने गलत किया तो मैं तेरे को समझाऊंगा कैसे करना है, नहीं तो फिर तेरे को आता ही होगा। फॉर्मूला देख के सब नहीं आता है, तो पहले समझानी पड़ती है कैसे फॉर्मूला आई हो। हाँ, पर स्कूल में भी वो थोड़ा सा ध्यान दे के आया होगा, उसके लिए पहले टेस्ट करने के उसको पूरा अच्छा, आप एग्जाम आता देते हो है उसके कि पहले? नहीं। हाँ हाँ। अगर नहीं आता हो तो फिर ही तो सिखाएंगे। अगर सब आता है और हम बोले कि ये सब होता है, ये सब होता है, वो बोलेगा ये तो पता है मेरे को, ये तो पता है मेरे को पहले, और टाइम भी चले जाता है ऐसे। तो पहले उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हें सही में आता है कि नहीं। बराबर। पर कोई पीरियड में ऐसा होता है कि हाँ जी, हम बाद में थोड़ी ज्यादा बात कर लेंगे। हाँ जी, हम रात को इधर ही है, हाँ जी। नहीं तो आज तू हमारा पीरियड तू ही ले लेगा। हमें पढ़ा देगा तू अभी। चलेगा ना? और फिर पूरा पीरियड आपको ही देंगे, सबको किसी को पीरियड नहीं देंगे। ये हम पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ाएंगे बस। और 3 दिन भी है, ठीक है। यहाँ फोकस किस पे होना चाहिए था कि ये फाइल नंबर 1 पर। आज तक ये ख्याल में नहीं था, इससे दूसरों को हम साफ सुथरा कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, फिर प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना नहीं पड़ेगा। आगे कुछ प्रोग्रेस हुआ कि वैसे के वैसे ही रहे तो देखना नहीं पड़ा। तो आपको खुद को पता चला रोज पहले से मुझे गलतियां भी इसकी ज्यादा दिखती है कि दूसरों की ज्यादा दिखती है। दूसरों की पहले गलतियां लंबे समय तक दिखती रही, अभी वो टाइम गैप कम हुआ, ये क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। मान लो कि किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो पहले हफ्तों तक चुपता था, महीनों तक चुपता था, अभी वो चुभन ऐसा कुछ भी व्यवहार होता है, कितनी लंबी चलते कितनी शॉर्ट हो गई वो पता नहीं चलता है। चलेगा ना? तो ये जितना जितना ज्ञान में रहते जाएंगे, आज्ञा का प्रयोग करते जाएंगे, उतना वो गैप कम हो रहा है कि बढ़ रहा है वो पता चलेगा। पहले समझ कच्ची थी तो उसके कारण क्या होता था, लेकिन ये गैप लंबा हो रहा है वो ख्याल में ही नहीं आ रहा था। दूसरों की गलतियां दिखती थी तो उसके पक्ष में बैठ जाते थे, तो सही में वो सही है कि गलत है वो देखते भी नहीं थे। अभी तक क्या रहता कि मैं ही सही हूं, मैं जो समझ रहा हूं वो ही सही है, दूसरे सब गलत है। तो उसके कारण दूसरों की गलतियां दिखती रहती थी। अभी आज्ञा की एप्लीकेशन करेंगे तो क्या समझ में आएगा, रिलेटिव व्यू पॉइंट से सेलेस है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। गलती किसने की? व्यवहार दृष्टि से सेलेस से की, तो निश्चय दृष्टि से क्या है? शुद्ध आत्मा। तो गलती शुद्ध आत्मा की है तो क्या नहीं है? गलती सेलेस से खुद ने की तो क्या नहीं, व्यवस्थित शक्ति ने करवाई। तो व्यवस्थित शक्ति ने करवाई तो जिम्मेदारी किसकी है? सेलेस की है कि व्यवस्थित शक्ति की है? किसकी जिम्मेदारी हुई? जो करवा रहा है उसकी जिम्मेदारी है ना। तो गलती हम सेलेस की देखते हैं कि व्यवस्थित शक्ति की देखते हैं? बात तो समझ नहीं पड़े चाहिए ना। बाहर व्यवहार में बोलने का नहीं कि आपकी गलती नहीं है, व्यवस्थित स्थिति गलती है ऐसा बाहर नहीं बोलने का है। मान लो कोई स्टाफ है आपका नुकसान करके आ गया, तो ऐसा नहीं बोलेगा व्यवस्थित शक्ति नुकसान करवाया, आप तो क्या आपने नहीं किया, टेंशन मत लो,
तो उधर तो उसको बोलना पड़ेगा भाई कंपनी को इसका नुकसान हो गया, आपके शरीर से काट देंगे, कंपनी कहाँ तक बैर करेगी। तो व्यवहार में ऐसा बोलने की छूट है, भीतर समझने का भी अव्यवस्थित ने किया तो क्या होगा कि भीतर आपको भी शांति रहेगी तो सामने वालों को नेगेटिव खड़ा नहीं होगा। आप बोलेंगे फिर भी नेगेटिव नहीं होगा। पहले तो कैसे डांटते थे, कैसे वही कर रहा है इस तरह से। तो क्या ये बात समझ में आती है फिर प्रॉब्लम आता नहीं। जय सच्चा, और कुछ तो करने का है नहीं इसमें। पहले हर जगह सबकी गलतियां दिखती थी, अभी आज्ञा का प्रयोग चालू करेंगे तो क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे दूसरों की गलतियां देखने का टाइम पीरियड कम होता जाएगा। पहले तो कंटिन्यूस दूसरों की गलती दिखती थी। जय सच्चा। आइए मामा जी, बहुत टाइम के बाद दर्शन दिया। जय सच्चा। अरे खड़े खड़े करो। जय सच्चा। जय सच्चा। चलेगा चलेगा। जय सच्चा। तो क्या हमें बात ख्याल में आती है, ये प्रोग्रेस हुआ कैसे पता चलेगा। तो पहले लंबे टाइम पर दूसरों की गलतियां दिखती थी, वो टाइम गैप कम हो रहा है। तो स्थिति क्या आएगी आगे, तो सामने वाले की गलती दिखनी ही बंद हो जाएगी। आगे हाजिर है तो गलती दिखाई नहीं देगी, गलती देखती है तो आनंद होता है कि दुख होता है सामने वाले की। भीतर स्थिरता बनी रहती है कि अपसेट करते हैं, वो सहयोग अपसेट करता है ना। अभी जब आप खुद अपसेट हो गए तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले पाएंगे। कुछ भी गलती हो गई, नुकसान हो गया, तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन आएगा? नहीं आएगा। देखिए आप स्टेबल हो तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन आ जाएगा। तो प्रॉब्लम रहेगा क्या? तो क्या कीमत किसकी है कि कितना आप आगे बढ़े, उसकी कीमत है। बाहर जो नुकसान लाभ हुआ, लाभ नुकसान हुआ, वो तो जो आप हिसाब में लेकर आए उतना ही होने वाला है। ये भीतर जो सारी असर होती है वो एक्स्ट्रा आइटम है, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर की चीज है। बात ख्याल में आ रही है? माल खरीदा आपने, देख के खरीदा, फिर माल आपके पास आया, फिर कंपनी पर चिल्लाएंगे कि आपने माल तो बोगस भेजा है। तो कंपनी बोलेगी ना आपने देख के ही लिया है, हमने थोड़ा माला पहना ही आपको, नहीं बोलेगा। कंपनी तो निर्जीव है, लेकिन ऐसे कोई मान लो कोई कस्टमर है, हफ्ते 15 दिन के बाद वापिस आएगा, बोला भैया बराबर नहीं चाहिए मुझे वापिस, तो ले लेंगे, सीधा ले लेंगे माल। तो उसको बोलेंगे भाई आपने पहना है, इससे हम वापिस नहीं ले सकते। व्यवहार से तो बोलना पड़ेगा, नहीं पहना तो हम ले लेते थे। तो क्या वो बोलना नहीं चाहिए? वो बोलने की छूट है, लेकिन सामने वाले का मन नहीं बिगड़ना चाहिए आपका। व्यवहार से जो भी बोलना है बोलो। अभी उसको हम डांटे, अभी इसमें कोई गारंटी नहीं है, वो सब बोलने की छूट है। कंपनी भी हमें कोई गारंटी नहीं देती है।
आपको परेशान है तो कंपनी को लिखो। यहाँ तो कोई गारंटी देता नहीं है, अब फॉरन में तो ले लेते वापिस, यहाँ तो कोई हाथ रखने ही नहीं देगा कि उधर सब अनुभव करके आया ना। पहले लोग क्या करते थे, शादी में आते थे उधर से तो नया सूट है वो सब लेके आते थे, यहाँ से वापिस जाके रिटर्न कर देते थे, कभी जरूरत नहीं है। जो रॉप जमाने का वो तो हो गया, वो वापिस जाके रिटर्न कर देते, पैसे वापिस आ गए। माल वापिस ज्यादा आना शुरू होता है, फिर सबका दिमाग तो चलेगा कि उधर भी इंडियन तो बैठे हैं ना, तो बोले भाई इतने टाइम में आता है तो वापिस लेने का, या तो नहीं पहना तो वापिस लेने का, तो पहना तो फिर वापिस नहीं लेने का। वो सब रिस्ट्रिक्शन फिर हम ही सिखाते हैं उनको। फिर वो व्यवहार में सब हम करते हैं, लेकिन ये मन वचन के लिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ बोलते हैं कि दूसरों की गलती क्यों देखता है। जैसे कस्टमर को समझाते हैं वैसे इसको भी नहीं समझाना चाहिए। ये मनोवचन का को समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए, तो तब बात आसान बनेगी ना। बच्चों से तो बात करते हैं, तो यहाँ बात करते खुद के साथ। खुद के साथ भी बात तो करनी चाहिए कि मामा के नहीं करनी चाहिए। कितनी बात करते हैं कसो जी, दूसरों को समझाने का, इसको समझाने का। ये समझ गया तो दूसरों को बोलने की जरूरत पड़ेगी, या हमें भी दूसरों को बोलना पड़ेगा कि आप समझते कि नहीं समझते, ऐसा बोलना कि नौबत आएगी? नहीं आएगी। तो समझने का किसको है, तो इसको समझने का है। और होता क्या है कि हम तो समझते ही नहीं है, तो दूसरों को समझाना चाहते हैं, वो तो रिजल्ट क्या मिलेगा फिर? मिलेगा लेकिन समझ लेना क्या। देखिए आप फोकस अपनी खुद की फाइल नंबर 1 पर है, तो फाइल नंबर 1 सही हो गई तो बाकी तो सब सही है। देखिए कोई भी व्यक्ति अपने व्यू पॉइंट से गलत नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने व्यू पॉइंट से सही है, तो किसी के व्यू पॉइंट को हम गलत नहीं बोल सकते। लेकिन कोई सफेद झूठ बोल रहा है, हाँ तो लेकिन वो उसका व्यू पॉइंट है ना, व्यू पॉइंट है। हाँ वो व्यू पॉइंट है, क्या है। चलो दूसरी तरह से मुझे बताओ, सही में आप अशोक जी हो? अशोक जी हो? ये तो आपने मान लिया था, वैसे उसे भी माना हुआ ही है कि मैं कर रहा हूं वो सही है, उसकी मान्यता है ना। तो किसी की मान्यता को हम गलत तो बोल नहीं सकते, समझाने का प्रयत्न कर सकते, उसकी ना नहीं बोलता हूं। तो गलत है बोलेंगे तो क्या होगा, तो आपसे वैर बनेगा, उसके साथ वैर बनेगा। क्या आप मुझे झूठा बोल रहे हैं? आप कौन सा साहूकार है? बात तो आएगी ना। देखिए यार सही गलत में पढ़ने की बात नहीं है, उसके व्यू पॉइंट का स्वीकार कर लिया, उधर आ गया अप्लाई कि रिलेटिव पॉइंट से व्यक्ति है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। आगे वो जो भी व्यवहार कर रहा है वो व्यवहार कौन करवा रहा है? वो खुद कर रहा है कि व्यवस्थित शक्ति करवा रही है? तो व्यवस्थित शक्ति करवा रही है तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलने की जरूरत है?
आप कुछ गलत है तो वो समझने के लिए तैयार हो, समझा सकते हैं ये जो व्यवहार किया वो सही नहीं है, ऐसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता है, ऐसा व्यवहार नहीं हुआ तो ज्यादा अच्छा है। वो समझ सकता है तो उसको समझा सकता है, पकड़ के बैठा तो क्या करेंगे, सही है। कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये कमाई हमें करने की, उसको करवाने की है। किसको कमाई करने की? हमें करने की है। हमें कमाई कब होगी? हमारी पकड़ के रखेंगे तभी कि पकड़ छूट जाएगी तभी, छूट जाएगी तभी। आज तक क्या हुआ? तो हम हमारी पकड़ के बैठे थे। व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार के तौर पे हर एक को रहता है ना कि मैं ही सही हूं। किसी को लगता है मैं गलत हूं? नहीं लगता है। तो वहां पकड़ के बैठेंगे तो क्या होगा? हल निकलेगा ही नहीं। आपका आशय कितना भी अच्छा है लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता तो क्या करने का? आप उसके हित के लिए बोल रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, उसको हित नहीं लगता तो क्या करने का? तो छोड़ देने की हमारी बात, और क्या करने का? शांत रहना छोड़ उसको फिर अनुभव करने देने का, और क्या कर सकते हैं? वो भी अनुभव करने के बाद तारा निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, तो उसको विचार आएगा भैया मैंने सही किया कि गलत किया। वो निकालेगा ही नहीं तो वो पता चलने वाला ही नहीं उसको फिर सही में मुझे क्या करना चाहिए था। देखिए यार, दादा भगवान क्या बोलते हैं? गलती किया किसी ने, मान लो कि बच्चों ने गलती की, तो गलती की हो तो उनको भी पता तो चलता है ना। मान लो कि बारिश है, आसपास के बच्चे साइकिल लेके बारिश में घूमने जाते हैं कि नहीं जाते? भीगने के लिए भी जाते हैं ना। आप बोलेंगे अभी देख बेटा संभाल के जाना, रास्ते में पानी भरा हुआ है, खड्डे है, खड्डा दिखेगा गिर जाएगा, चोट आएगी, कपड़े बिगड़ेंगे, सब बिगड़ेगा। वो बात कहाँ तक याद रहेगी? जहां तक गेट से बाहर नहीं निकलेगा वहां तक। और जैसे दूसरे को भागते हुए देखते थे वो भी जोर से पेडल मारना शुरू कर देगा, फिर आपकी कोई बात याद रहेगी? तो गिर के आएगा, मामूली चोट लगी है फिर भी आते हैं, जैसे गेट खोलेगा ना, देख रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, तुरंत क्या करेगा? दूसरे देख लिया तो भी रोना शुरू कर देगा। क्यों होते हैं? उसको मालूम है कि डांट पड़ने वाली है या प्रसादी मिलने वाली है, इसे पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाता है कि भाई इनको इमोशनल कर दो सामने वाले को, तो हम बच जाए। आमतौर पर हम क्या करते हैं? मान लो कि कपड़े बिगाड़ के भी आ गए, हम क्या करते हैं? बच्चों के घर पे आते हैं वैसे स्नान करा देते हैं, क्या करते हैं? स्नान कराते? अरे पहले धोते हो उसको, उसको वैसे ही करेंगे ना, उसके बाद ही तो कपड़े चेंज करके। अरे पहले क्यों करेंगे? पहले हाथ से धोते हैं। एक तो गीला हो गया फिर उसको मारेंगे क्या? हाँ नहीं पहले हाथ से धोते, हाथ से मारते हैं। वो तो आपने नहीं मारा होगा। वो पहले आमतौर पे क्या करते हैं? पूछो, सबको पूछो क्या करते हैं? पहले बच्चे को धोएंगे ना, भाई बोल के भेजा था फिर भी आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? आजकल नहीं, अभी आजकल नहीं ये तो अभी ये बच्चे भी थोड़े समझदार हो गए, लेकिन उसको समझाना तो पड़ेगा ना। समझाते हैं उसको। दादा क्या बोलते हैं? वो गिर गया वो तो वो भी जानता है, तो गिरे हुए को और भी गिराना है तो नहीं, उसको भी हाथ पकड़ के खड़ा करने का है, तो उसमें से बाहर कैसे निकालने का? तो उसको बोलने का भाई देख तू गिर गया, फिर चोट आई तो मैं ड्रेसिंग कर दूंगी, वो ड्रेसिंग कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बार ख्याल कर रहे तो अच्छा है कि थोड़ा ही चोट आई है, तो फ्रैक्चर हो जाता है क्या करता? खेलना किसका बंद हो जाएगा? पढ़ाई किसकी बंद हो जाएगी?
तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? अभी ये बात समझ में आ गई, अब दूसरी बार बोलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन वो अनुभव करके आया तब पता चलता है ना। आपके अनुभव पे आप कितना भी लाभ दो, उसको लाभ लेना है तो लेगा ना, सीधी बात है। हमें तो क्या लगता है, मैं बोलता हूँ उसको बात समझ में आनी चाहिए ना। तो भाई नहीं आ रही स्थिति से वो कर रहा है। यहां भी देखो, दादा भगवान ने कहीं भी व्यवहार में अपनी पकड़ रखी नहीं थी। ईराबा के साथ का व्यवहार हो या महात्माओं के साथ का व्यवहार हो या संघ के साथ का व्यवहार हो, कहीं भी उन्होंने अपनी नहीं चलाई है। बिजनेस में भी पार्टनर्स के साथ भी अपना कुछ चलाया ही नहीं है। कैसे रहे? सारी जिंदगी सबका स्वभाव से निपटारा ही किया उन्होंने। केवल आप गलत हो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें भी पढ़े नहीं है। गलत करो ऐसा भी नहीं बोला है किसी को। हाँ, खाली उसका रियलाइज करा दे भी ये आपकी गलती है। वो भी किसको? जो समझने के लिए तैयार है उसको। सुबह में बात नहीं किया तो जेब कतरा था, फिर नीति अनीति की बात हुई, उसको समझ में आ गई तो उसे भी नियम ले लिया कि मुझे भी 5 जेब काटना है महीने में। मैं यूट्यूब पे सुन रहा हूँ। हाँ, तो 4 जेब काटा, लेकिन उसका जो टारगेट था वो पूरा हुआ नहीं, तो 5वां जेब काटा, जेब भरा हुआ था ऐसा लगा, लेकिन उसमें से वो पेपर के टुकड़े ही निकले, पैसा नहीं निकला। वो आगे जा रहा था, अब भीतर तो चलता है कि वाइफ ने बोला कि ये दिवाली सामने है, ये मेरा तो इतना पैसा चाहिए हमें, इस टाइम ज्यादा पैसा देना। तो टारगेट तो आधा भी नहीं हुआ था और लिमिट तो पूरी हो गई, तभी क्या करने का। तो वहां जा रहा था घर पे वापिस, तो दिखाई दिया कि दूसरा बंदा जा रहा है, तो 10,000 का बंडल दिखता है, 100 की नोट का नया बंडल दिख रहा है, आसानी से निकाल भी सकता है। तो जैसे निकालने जाता है उसको याद आता है कि मेरा टारगेट तो 5 का मैंने नियम लिया है वो पूरा हो गया, फिर 6ठा मैं जेब काट नहीं सकता। तो मन बाउंड्री में आ गया ना, तो मन बाउंड्री में आ गया तो नियम किया, तो नियम आपको मोक्ष में लेके जाएगा। वैसे यार इसको हमें समझाना तो चाहिए ना कि कोई बाउंड्री में है, बाउंड्री कोई। दादा ने क्या बताया कि भाई आवश्यक कितनी चीजें हैं और अनावश्यक फालतू की कितनी चीजें हम लाते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं, वो नहीं देखना चाहिए। जो आवश्यक है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सांस लिए बिना चलेगा? नहीं चलेगा। हवा पानी वो सब तो फ्री में ही मिलता है। अभी मैं सोचूं कि 2 महीने 3 महीने नया ड्रेस लाने का है, ये तो अभी पुराना हो गया, तो पुण्य तो मेरी खर्च हो रही है ना, अकेली पुण्य खर्च नहीं हो रही है। आप सारे जीवन में कितना खाना पीना, कपड़े, कितना पानी, वो सब चीजों का आप कोटा लेकर आए।
अभी वो कोटा हम ऐसे यूज करते रहेंगे तो लास्ट में क्या होगा? कोटा बचेगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर जो है उसमें चलाना पड़ेगा। पुराने कपड़े पहनते रहना पड़ेगा। कोटा बचा नहीं है तो जो है वही अभी दोबारा प्रयोग करते रहो। पानी का मिस यूज किया, ज्यादा यूज कर दिया तो जॉब ऐसी जगह पे मिलेगी पानी नहीं आता है, क्या करने का? मगर कोटा यूज करना ना करना तो अपने हाथ में नहीं है। हाँ, पर कैसे करना हो तो आपके हाथ में डिसाइड तो कर सकते हैं ना। हाथ में नहीं है ऐसा टोटली फ्री फ्री वे में भी बोल नहीं सकते ना। पता है कितना कोटा लेकर आए, कहा कितना प्रयोग करने वाले वो पता है? कुछ भी पता नहीं है। तो भी हमें हमारी एक बाउंड्री तो बना के रखनी चाहिए ना, सीमा तो होनी चाहिए ना। बैंक में काम करते हैं आप, तो मैनेजर है, तो आपकी जो ड्यूटी है वो तो करने के लिए बोलेगा। एक्स्ट्रा काम भी देता होगा कि नहीं देता है, बराबर है। अभी एक्स्ट्रा काम कितना करना कितना नहीं करना वो आपके हाथ में है कि नहीं है? अभी और नहीं बस जनरल बात करते हैं। हाथ में मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बैंक में था, मैं रीजनल मैनेजर ब्रांच विजिट में आया तो मुझे बोल गया, तभी तो लेजर मैनुअल लेजर था ना, तो बोल के गया कि आप बैलेंसिंग करना सीख लेना। लेजर आउट होते हैं, कंप्यूटर आएगा तो अभी इतना प्रॉब्लम है ही नहीं होता नहीं इतना, क्या होता है बहुत कम होता होगा। तो पहले तो सालों तक आउट चलता था लेजर। मैं तो अकाउंट्स का आदमी भी नहीं था, अकाउंट्स की एबीसीडी आज भी मुझे नहीं आती है। तो क्रेडिट है डेबिट है तो लेने का कि देने का वो मुझे पूछना पड़ता है सीए को। इंटरेस्ट ही नहीं ना उस साइड का। हाँ, जनरल एंट्री डालनी है तो पता चलता है, बाकी में पता नहीं चलता है। वो तो बोल के गया। तो मेरा अनुभव क्या बोल रहा था कि लेजर बैलेंसिंग सीखो। वो बंदे का काम कब शुरू होता था? ब्रांच का सारा काम बंद होने के बाद, 4 बजे के बाद। तो कहाँ तक बैठना पड़ेगा? रात को 8-9 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो झंझट नहीं है, तो सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो उसका हाँ बोल दिया तो उसको हो गया, मैंने बोला है सीखता होगा। जिम्मेदारी मैनेजर की कि मेरी है? मैं तो मैनेजर नहीं था, तो मैनेजर हूं तो भी मुझे दूसरों से काम लेना सीख लेने का है कि कैसे मैनेज करना। ये सीख लिया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। कि हाँ, ये ऐसा जरूरी नहीं कि वो सामने वाला बोल रहे हर काम करना ही चाहिए। एक बार हाँ बोल दिया, मैं बोल सकते दूसरा मेरा काम का बहुत ज्यादा ऐसे टाइम नहीं मिला, ऐसे बहाना फिर निकाल सकते हैं आप। तो सीधा ही बोले नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगी, तो क्या होगा? तो मैं तो एग्रीकल्चर ऑफिसर था, तो मेरे पास जनरल बैंकिंग कराते थे। तो मैंने मैनेजर को बोला था कि अब मैं सुबह में आऊँ ब्रांच में, तभी आपको बोल देना कि आज ये काम करने का है। या तो सारा दिन जनरल बैंकिंग करूंगा या तो एग्रीकल्चर और लोन का काम करूंगा। आप आधी दाढ़ी करके बोलोगे अभी ये काम छोड़ के अभी ये करो, तो नहीं करूंगा। वो दादागिरी क्यों कर सकते? मैं स्पेशल रिक्रूटी था, तो मैं बोल सकता ये मेरा काम नहीं है, आपने मेरी कंसेंट लिया नहीं है जनरल बैंकिंग कराने के लिए। अभी वो बात मैनेजर को अच्छी तो नहीं लगेगी। जब मैंने बैंक छोड़ी, मेरा मैनेजर क्या बोलता था कि आपको जो काम करना था वो ही करते थे। मैं बोलता वो तो करते ही नहीं थे। अभी वो मुझे
साढ़े तीन बजे सब चेकिंग हो गया। फिर 4 बजे बोला गया कि अभी रिकवरी के लिए बाहर जाओ, और उसको घर पे जाना है, और मुझे रिकवरी में भेजना, मैं जाऊंगा? जाएंगे? वो रोज आता मेरे ही स्कूटर पे घर पे आता था बड़ौदा में। फिर भी ऐसा बोला, मैं एक आंसर सुनता, दूसरे का आंसर निकाल देता था। मेरा फॉलोअप दूसरी तरह से चलता रहता, एक टेबल पर बैठे बैठे रिकवरी आती रहती थी। पर बात समझने की क्या है कि यार उसका सॉल्यूशन हमें इस तरह से लाने का है। अभी बैंक में दादागिरी मैं तो बहुत करता था, मैनेजमेंट के साथ झगड़ा करता था, स्टाफ के साथ झगड़ा नहीं करता था। जब मैंने बैंक छोड़ी, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आप रिजाइन कर दो, आपको लीव एनकेसमेंट नहीं मिलेगा। 15 साल की जॉब किया था मैंने, साथ में किसी ने ये भी नहीं बताया कि आपके जितने साल पूरे हुए उतने साल का ही आपको कंट्रीब्यूशन पीएफ में बैंक का मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इस सबके साथ झगड़ा ही किया मैनेजमेंट के साथ, तो मेरी तो लीव लैप्स होगी। तो क्या हम हमारा पकड़ के रखते तो नुकसान तो आएगा ही ना सामने। तो क्या तो हमें दिखता है कि ये नुकसान आया, तो सामने ये भी दिखता है भी ये मैंने इस तरह से व्यवहार किया, इससे किसी ने मुझे बताया नहीं। आपकी भी लीव जाने वाली होगी, एनकेसमेंट मिलेगा? कुछ के लिए है, कुछ का 50% मिलेगा। अभी तो आपको छुट्टी भी नहीं देंगे ना। आपकी सीएल है, वो सब सिक लीव ले सकते हैं? नहीं, सिक लीव ले सकते हैं? नहीं सिक लीव नहीं ले सकते, सिर्फ सीएल ले सकते। तो बीमार तो हो सकता है ना, तो भी एलओपी कर देंगे या एक्सटेंड कर देंगे। टेक्निकली नहीं कर सकते ऐसा, वो सब कुछ कर सकते हैं वो। डॉक्टर का सर्टिफिकेट देकर देने का तो नहीं कर CL सकते। अलाउड है बस, मैं तो वो तो मैं जानता ही हूँ। तो सब कुछ कर सकते हैं। पहले यहाँ क्या करते थे कि हम उसका सॉल्यूशन लाते हैं, अभी सॉल्यूशन नहीं आया तो जो परिणाम है उसका स्वीकार तो करना पड़ेगा। मैंने रिजाइन किया था, मेरे रेजिग्नेशन नोटिस के हिसाब से जिस दिन मुझे रिहा करना चाहिए उसकी एक दिन लेट किया था, तो क्या हुआ? डिसमिसल विदाउट सर्विंग नोटिस हुआ, डिसमिसल हुआ, टेक्निकली डिसमिसल ही है ना। भाई बैंक के सामने मैं केस करता, कौन मर जाता? जो नीचे वाले मैनेजमेंट वाले ही मरते थे, तो मुझे क्या फायदा होने वाला है? बात तो समझनी चाहिए। ठीक है यार, दूसरों को नुकसान हो रहा है, वो करना कि नहीं करना, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो पैसे के पीछे हम थे नहीं। तो जैसे यहाँ छोड़ देते हैं ना, लेकिन व्यवहार में क्या करते हैं? छोड़ते हैं, छूटता है। तो कमाई कब होती है? जो समझ वाला है वो पहले छोड़ता है, जिसकी ज्यादा समझ है वो पहले छोड़ता है। तो ऐसे देखो, जो ज्यादा समझ हो उसको मार भी ज्यादा खाने की आती है व्यवहार से। तुम्हारा है। तो जो व्यवहार वाले वो तो पकड़ के बैठेंगे ना, हर बार मुझे ही एडजस्ट होने का। तो कोई सामने वाला नहीं समझ है, इससे आपको सॉल्यूशन लाने के लिए एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। उस समय आपको दादाजी ज्ञान था? तो दादा का ज्ञान था ही मेरे पास, तो लेकिन
वो मुझे तो ऐसा था ही नहीं कि मुझे उनको परेशान करना है, तो मेरे अपोजिट यूनियन वाले ही थे सारी मैनेजमेंट। बाहर जाके बात करिए। बात ख्याल में आ रही? मैं अकेला ही मेरे यूनियन वाला था उधर, बाकी सब अपोजिट यूनियन वाला था, मैनेजर अकाउंटेंट सब। तो मेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनको कोई मौका ही नहीं मिलता था मुझे पकड़ने के लिए। तो क्या होगा फिर? उसको भीतर तो दिमाग चलता रहेगा ना, अकाउंटेंट को नहीं चलेगा, मैनेजर को तो चलता है ना कि टैप पे कैसे लूं इसको। यार ये दादा का विज्ञान ऐसा है कि भाई आपको भीतर से पकड़ छुड़वा देता है, और भीतर से पकड़ छूट गई तो कोई प्रॉब्लम ही कहाँ है। बैंक की यूनियन के साथ की मीटिंग में मैनेजमेंट को मैं डांटता भी था कि लोग मेरे कंधे पे ही बंदूक रखते थे। यूनियन वाले भी पक्के होते हैं, तो मैं एजीएम को सबको डांटता भी था, जीएम को सबको। ये फिर भी क्या था कि मेरे मन में नेगेटिव नहीं रहता था, तो वो मेरा जो एजीएम था उसे मुझे डेप्यूटेशन पे सूरत भेजा था 1 महीने के लिए, तो भेजेगा ही नहीं तो उसको नेगेटिव है। ठीक है यार, जो ज्ञान काम करता है वो बात पूरी अलग है, तो प्रतिग्रहण क्या हेल्प करते वो भी बात समझने जैसी है। मेरा मैनेजर था वो मेरा फादर का स्टूडेंट था, नवसारी का ग्रेजुएट था। दूसरे स्टाफ वाले तो भी सब नवसारी के ग्रेजुएट थे। मैं बड़ौदा से भरूच अप डाउन करता था, तो हमारी एग्रीकल्चर की ब्रांच अलग थी, वो बैंक रूटीन ब्रांच में नहीं थी। देना बैंक में पहला ऐसा रूरल सर्विस सेंटर था, तो काम नहीं होता था। मैं 4 बजे निकल जाता था, तो भरूच से अंकलेश्वर जाता था, उधर से ट्रेन पकड़ के बड़ौदा जाता था। क्यों? तो सत्संग का दादा का लाभ मिले इसके लिए, दूसरा कोई तो इंटरेस्ट था नहीं। घर जल्दी पहुंचना ऐसा तो था नहीं। वो भी काम नहीं होता तो जाता, काम होता तो जाता, ऐसा तो ही नहीं था। फिर भी उसे कंप्लेंट डाल दी रीजनल मैनेजर को, तो रीजनल मैनेजर ने मुझे वार्निंग दिया। तो मुझे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने बहुत लाइटली लिया। जो वार्निंग भी दिया कि भाई मैं आपको अप डाउन नहीं कर सकूं, ऐसी जगह ट्रांसफर कर दूंगा। मेरा मैनेजर था, उसकी वाइफ बीमार थी हॉस्पिटल में, तो मैंने बोला था उसको कि भाई आपको टाइम मिले तब आ जाना, बाकी काम संभाल लेंगे, तो छुट्टी रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब बातें वो सामने वाले को समझ में नहीं आती है, ये हमारे हिसाब बारियतें भी समझ में नहीं आएगी। वो 1 महीना ट्रेनिंग में गया था पूना CAB में, उसके एब्सेंस में 2-3 क्रेडिट काम किया। तो एग्रीकल्चर फेयर था, उसमें बैंक को प्रीमियर स्टॉल भी दिलवाया था। तो उसको लगा भी मुझे ओवरटेक कर रहा है, जो भी लगा होगा। तो फिर ये बात हुई कि दिसंबर या जनवरी में, जनवरी एंड में मेरा ऑर्डर आया या फरवरी में आया होगा, भरूच से डेडियापाड़ा ट्रांसफर की ट्राइबल एरिया में। तो उधर जनरल बैंकिंग भी साथ में करने का था। जनरल बैंकिंग ABCD तो मुझे आती नहीं थी, इससे पहले ट्रेनिंग में भेजा अहमदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में।
तो ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल की परमिशन लेकर मैं बैंक के एजीएम को मिलने के लिए गया था। पापा का एक कलीग था, उसकी पहचान थी एजीएम के साथ, तो उसने बोला जाके मिलना मेरा नाम देके। तो मैं मिलने के लिए गया था उनको, तो नीचे लिफ्ट के पास ही मेरा रीजनल मैनेजर मुझे मिल गया। बराबर उसने मुझे पूछा कि किसको पूछ के आप आए यहाँ, तो मैंने बोला कि प्रिंसिपल की परमिशन लेके आया। कुछ बोला नहीं। अभी मैं एजीएम को मिलकर एजीएम ने बात तो किया ही होगा उनसे, फिर भी कुछ हुआ नहीं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं थी। गया डेडियापाड़ा, दिवाली के अगले दिन 6-7 महीने के बाद, 8-7 महीने के बाद बैंक का काम निकाल के मैं बड़ौदा आया था। तो मैंने चिट्ठी भेजी उनको, तो चिट्ठी भेजी तो उस अंदर बुलाया, जैसे एंटर हुआ मुझे बोला आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग फ्रॉम यू। बराबर, चले साहब क्या करेंगे, सीधे बाहर निकल जाएंगे, तो सुनना ही नहीं उसको, फिर खड़े रहने की जरूरत क्या है। तो मैंने बहुत आराम से बोला आई हैव नॉट कम हियर टू कंप्लेन रिगार्डिंग माय ट्रांसफर, आई एम हैप्पी देयर, बट आई जस्ट कम हियर टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। तो मैंने बताया ये सत्संग के हिसाब से मैं अपडाउन करता है, मेरे पेरेंट्स तो नौसारी रहते हैं, तो मैं नौसारी से अपडाउन करता ना, ऐसा होता है। इफ यू कैन एकोमोडेट मी नियर बाय भरूच, इट वुड बी बेटर फॉर मी। इतना ही क्या, रिक्वेस्ट भी नहीं। फिर बात समझो, ये ज्ञान क्या काम करता है। अगर मुझे नेगेटिव हुआ होता, ये रीजनल मैनेजर कच्चे कान का है, अपनी मनमानी करता है, कुछ समझता नहीं है, तो मैनेजर ने बोला पूछना तो चाहिए भाई क्या है क्या नहीं। वो सब नेगेटिव चलता तो ये बात सुनता, तो पहले तो नहीं बोल दिया। अभी इसका इम्पैक्ट देखो आगे का। नॉर्मली ये सब पनिशमेंट ट्रांसफर होती है ना, मिनिमम 1 साल गिना जाता है, पर 1.5 साल के पहले कोई ट्रांसफर होकर जाता नहीं है, टाइम ज्यादा ही लगता है। 10 महीना पूरा हुआ, उसको बोल के आया, नवंबर में बोला मैंने, जनवरी में मेरा ट्रांसफर हो गया वापिस भरूच का। भरूच ट्रांसफर हो गया, 15 दिन महीने के बाद ही वो रीजनल मैनेजर उधर ब्रांच विजिट में जाने वाले थे डेडियापाड़ा, तो उसने मुझे मैसेज भेजा कि आप उधर आ जाना। फिर पनिशमेंट ट्रांसफर आपको काम कर, आप कैसे काम करेंगे, नॉर्मली काम करेंगे कि इसकी असर रहेगी जनरल आदमी पर, जनरल ऑफिसर है कोई भी, तो असर रहेगी कि नहीं होगी। कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, अभी काम ही नहीं करना है, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके सामने हुआ क्या, तो मैं तो बाहर तो कहीं जाता, जनरल बैंकिंग करने से बाहर जाने का तो मौका मिलता भी नहीं था। मैं नेगेटिव नहीं था। रोज शाम को उधर एक दूध मंडली थी और क्रिश्चियन मिशन था उधर, वो उसकी मैनेजमेंट के अंदर में था। रोज जाके बैठने का, चाय पानी भी उसका ही करने का, वो सब लेजर देखने का उसका, दिखता है मेरा बोरोवर है, इसका पैसा जमा है, चल भैया तू पैसा ट्रांसफर कर। तो 11 महीने 127 अकाउंट क्लोज करवाए और 127 अकाउंट फाइनेंस किए नए, ऊपर से आउटस्टैंडिंग एडवांसेस कम हो गए, पुरानी रिकवरी आ गई तो आउटस्टैंडिंग एडवांसेस कम हो गए। तो मेरा कोई परफॉर्मेंस तो था ही नहीं, ऐसे देखो तो अकाउंट वाइज तो कोई परफॉर्मेंस था ही नहीं। वो गया, वो जो मिशन था उसके फादर को मिलने के लिए गया। फादर तो मेरे लिए एक भी अक्सर नेगेटिव बोल सके ऐसा कुछ था ही नहीं।
किसी का 5 पैसा मैंने बनाया है वो कोई बोल सकता है, तो उसे कुछ भी पूछा हो मेरे लिए पॉजिटिव बात ही बताई होगी। मैंने 2 स्कीम बना के दिया है, तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग तो लिया ही नहीं था मैंने। 2 फाइनेंस की स्कीम बना के दी थी उसको लगा भी आदमी अच्छा है, इंप्रेशन तो रहती है ना, तो देखता भी है कि भी सब परचेस चल रही है, उसको कोई इंटरेस्ट है नहीं। 2 व्यापारी आए, मुझे पूछा भी आपका क्या रखने का है, तो सीधा तो पूछेंगे चाय पानी करने के लिए क्या है, तो चाय भी मैंने पी लाई, उसकी तो चाय पीऊंगा। तो मुझे भी अनुभव करना था वो किस तरह से बात करें, मेरे लिए तो अनुभव नया था ना। आधे पौने घंटे गोल गोल बात करते करते भी लास्ट में उसे रहा नहीं गया, अभी आपका क्या रखने का है, तो मैंने बोला भाई मेरा कुछ नहीं रखने का है, आप अच्छी क्वालिटी की गाय भैंस दो, यही मेरा आ गया उसमें सब। मैं जानता हूँ पैसे की पथारी करके नींद अच्छी आएगी ऐसा तो अच्छे से सो पाएंगे ऐसा तो है ही नहीं, हो सकता है पथारी कर दो, बिस्तर बिछा दो पैसे का, नींद अच्छी आएगी कि टेंशन बढ़ेगा। यह बात ये समझने की है, तो यहाँ आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ तो परिणाम क्या है, एक महीने के बाद मेरा ऑर्डर बड़ौदा का आ गया, रीजनल ऑफिस का। 1.5 साल में वो मेरी 5वीं ट्रांसफर थी। तो उसके पहले ऑपोजिट यूनियन वाला लीडर आया था मेंबरशिप के लिए, तो मुझे धमकी दे के गया था कि मैं आपको देख लूंगा। तो मैंने बोला देख भाई, मेंबरशिप ये टाइम जिसको दिया है वो भी 1 साल में तो वही चालू रहेगी, आपको डोनेशन चाहिए तो 60 रुपया मैं दे दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबरशिप ये टाइम चेंज नहीं होगी, जिससे काम का ऐसा लगा उसको मेंबरशिप दिया है, वो धमकी देगा आपको मेरे पास आना पड़ेगा। नॉर्मली क्या रीजनल मैनेजर के साथ ये सब धमकी वालों का काम ज्यादा चलता है, तो इधर उल्टा हुआ, वो धमकी देगा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर बड़ौदा का आ गया, वो तो ऑर्डर मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं तो सबसे जूनियर था बैंक में उस टाइम। 1.5 साल में मेरी 5वीं पोस्टिंग थी, वो तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो ये परिणाम किसका आता है कि मैं हर संजोग में तो पॉजिटिव रह के काम किया मैंने, कोई भी संजोग के लिए मैंने कंप्लेन नहीं किया उनको, ये गलत किया कि ये बराबर नहीं हुआ, ये नहीं करना चाहिए, कोई बात ही नहीं, भीतर ऐसा खराब ही नहीं होता था। मेरा मैनेजर था वो जैन था, वो ट्राइबल एरिया में तो खाने की जगह भी एक आध मार मिलती है, तो जो सबसे सस्ती सब्जी मिलती है वही बनाएगा रोज। आलू प्याज या आलू बैंगन ऐसा ही बनेगा ना, और रोज चिल्लाता भी था और खाता भी था। मुझे जितना जरूर लगता उतना ले लेता था। देखिए यार, जब आप हर संजोग में पॉजिटिव रहते हैं उसका पॉजिटिव रास्ता निकल ही जाता है, लाना नहीं पड़ता है। चाहे हम अधिकारी का कहना माने या नहीं माने, कहना तो माना ही, नहीं माना ऐसा थोड़ा था। मैंने बैंक को लेटर लिखा था हेड ऑफिस को, आई एम अ स्पेशल रिक्रूट एग्रीकल्चर ऑफिसर, आई हैव नॉट गिवन माय कंसेंट टू वर्क इन जनरल बैंकिंग। उसके बावजूद भी आप मेरे पास जनरल बैंकिंग करवा रहे हैं,
तो कुछ गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बराबर। मैंने बैंक छोड़ी, वहां तक आंसर आया नहीं, क्या आंसर दे सकते हैं? कंसेंट तो कंपल्सरी है ना। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई आपने काम किया इससे आपकी कंसेंट है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। मैंने गलती किया था, मैंने सीधा लेटर लिखा था, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं भेजा था। तो बात समझने की क्या है, देखिए यार आपको नेगेटिव नहीं हुआ तो सामने वाले पर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा ना। आमतौर पे हमें क्या होता है, देखिए वो संजोगों के असर, संजोगों के प्रभाव में आ ही जाते हैं। देखिए यार वो मेरा पुरुषार्थ नहीं था, दादा का ज्ञान, दादा की समझ मुझे हेल्प कर रही थी, तो मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं था। ये संजोग हमें सिखाते हैं। डेडियापाड़ा से वापस गुरु ट्रांसफर हो गया, मेरा कलीग ही था, वो स्टेशन सीनियरिटी की नहीं जाती है, बाकी ज्वाइन तो हम एक ही डे पे सेम डे हुए थे। वो इंचार्ज था, मैनेजर नहीं था। तो मैं ट्रांसफर हो गया, उसने बोला कि प्यून है वो बहुत परेशान करता है। जो मेरा कलीग था मुसलमान था, वो SC/ST था, तो दोनों का आपस में बनता नहीं था। आया, उसने मुझे कंप्लेन किया भी ऐसा है। मैंने बोला भाई आपको कुछ बोलने का नहीं, एक काम करते हैं 2 हफ्ते के लिए हम 1:30 बजे की ट्रेन सैटरडे को पकड़ते हैं, उसकी जगह 3 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे, बराबर। हम 1:30 बजे की पकड़, उसको भी 1:30 बजे की दिल्ली जनता, सेम दिल्ली जनता ही मिलती थी भरूच से। वो रहता था कोसंबा, वो 1:30 बजे निकलता, 2 बजे 2:15 बजे तक घर पे पहुंच जाता था। 3 बजे हम लोग निकलते थे, तो हम 5 बजे घर पे पहुंच जाते थे, उसको 5 बजे के भरूच से ट्रेन मिलती थी, तो 5:30 बजे घर पे पहुंचता था। फिर कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ दादागिरी करने जैसी नहीं है। क्योंकि अभी मैंने तो, मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव था ही नहीं, क्योंकि यहाँ व्यवहार में आप आंख कान खुला रखकर ऑब्जर्व करते थे, सब सीख लेते थे। पापा प्रिंसिपल थे, ये सब तो संजोग उनको आते ही रहते थे, कैसे हैंडलिंग करते वो देखा है, देखकर सीख सकते हैं। तो यार सीखेंगे कब? कि जब आप तारण निकालेंगे तभी। जो संयोग में सब फंसा हुए है वहां तारण निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो गलती नहीं करेंगे आप। तो दूसरा करे उसमें से भी आप सीख लेंगे, ये गलती करने जैसी नहीं है। तो तारण निकला ही नहीं तो कमाई क्या होगी? तो वैसे यहां भी क्या है कि यहाँ जो भी संजोग में हम आते हैं वहां हमें ये तो दिखना ही चाहिए ना, कि नहीं दिखना चाहिए? हम कितना देखते हैं? हर एक संयोग में तारण निकालते जाओ तो आगे बढ़ते जाएंगे। चलो कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो घड़ी अपना काम कर रही है। ये तो नहीं कर रही है, पीछे वाली कर रही है। हाँ 7 का टाइम है, 7:30 का, 7 का। अब बोलते नहीं ओवर टाइम क्यों करते? तो बैंक वाले ओवर टाइम नहीं देते।
कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो पूरा करते हैं। माँ बाप खुद तो पूछो, नहीं तो आशीष दे के जाओ। वडीलों का आशीष चाहिए ना। लास्ट टाइम तो आपने दर्शन नहीं दे दिया, टाइम मेरी पुण्य जगी, आपने दर्शन दे दिए। आपके दर्शन किए, आप हमारे कर रहे, हम आपके भीतर कर रहे हैं, तो दोनों का आपस में कमाई तो होनी चाहिए ना। દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, ઓ દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, ઓ દાદા ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો, दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो, દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો, દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद।